There comes a moment in life when you want to explore the unexplored. And when life offers you with the first chance, you seize it, but then you start craving for the second one. Another taste of that freedom. This is exactly how I felt when I rode India's one of the most beautiful route, which is Bangalore to Ooty Kunnu. And this is not just a fact but a great emotional decision that everyone should take in their life, which reminds you what Mother Nature has crafted to offer you. So when I finally decided to leave this beautiful place with empty pocket but heart filled with great memories, I knew I have to tackle with everyday hurdle, broken roads and dusty air again. But the reality is, adventure will never last long. Reality always wins. Having said that, I welcome you to another daily ride series where adventure will definitely last long and you'll get a chance to experience it every day. Because road to adventure never really ends. You just need to find the other one. Enjoy the ride. Alright guys, another day, another ride. Let's do audio sync. 1, 2, 3. Let's go. Alright, good morning YouTube and welcome back to another video. So this is our ride to office video. So मैं सोच रहा हूँ कि ऐसी वीडियो अब कंटिन्यू करूँ. And what? बेकार है भैया, मैं तो टूट गया. Oh man, बैंगलोर में तोड़ फोड़ और कंस्ट्रक्शन कब तक चलते रहेगा? I don't know why, but this is happening a lot. They are just breaking the thing and then building, then breaking, building, breaking, building, breaking, building, breaking, building. This keep on happening. Master, I'm tired of it. Everywhere in Bangalore you will see the same thing. अभी रास्ते में हम जा रहे हैं, तो मैं सेम सिनेरियो आपको बहुत दिखा सकता हूँ. आइए देखते हैं, मजा आएगा. So it's like they have just built the road और कुछ टाइम के बाद उन्होंने वहाँ पे गड्ढा कर दिया है एंड देन कुछ नया कंस्ट्रक्शन चालू कर दिया है साइड में. I don't know what is happening here man. सब जगह तोड़ फोड़ हो रही है, लेकिन ये देखो जैसे ये पैच है, ये गड्ढा, ये पता नहीं कब से है, ये भरेंगे ही नहीं. एंड राइट नाउ आई एम राइडिंग टुवर्ड्स माई ऑफिस. तो मैं सोच रहा था कि ये जो डेली ऑब्जर्वेशन वीडियोज़ हैं इनको मैं कंटिन्यू करता हूँ. तो मैं सोच रहा हूँ ना कि जब भी मैं ऑफिस जाया करूँगा तब मैं ब्लॉग बनाऊँ, और जब कभी भी बेंगलोर में यहाँ वहाँ जाते हैं, अनदर गड्ढा, बेंगलोर में कहीं और भी जाते हैं तो भी मैं उसका मोटो ब्लॉग बनाऊँ, ऐसा मैं सोच रहा हूँ. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टुडे. ये देखो, एक ये है 18% गाइस, 18%. अभी इस पैच को देख लो अगेन. ये पैच शुरू से ऐसा ही है, बीच में उन्होंने यहाँ वहाँ बना दिया था. अभी देखो ये यहाँ रोड बन गई है. कुछ दिनों के बाद आई विल शो यू ये रोड कहीं ना कहीं से टूट जाएगी. ओके, तो डेफिनेटली दे विल ब्रेक दिस अगेन. सो आई विल शो यू. ये देखो, ये इन्होंने रोड बनाते हैं, एक साइड से ये ऊंचा कर देते हैं, फिर जहाँ से इनका कंप्लीट होता है ऐसे ऊंचा छोड़ देते हैं ताकि बाइक अगर कोई जाए तो उसका बैलेंस ख़राब हो जाए. अब ये देखो, ये एक पैच है, ये इतना बड़ा गड्ढा. 18% GST इस उम्मीद पे आज जीतेंगे, कल जीतेंगे, परसों जीतेंगे. I don't know but how they are managing the thing. This is what we are paying tax for. ये देखो यहाँ बीच में. Alright, ड्राइविंग स्कूल. मैंने भी ड्राइविंग जब सीखना स्टार्ट किया था तब मैं इसी ड्राइविंग स्कूल में जाता था. Stop it. Anyway, what I was talking about, road condition. What do you think? Why the road conditions are so bad in India? यहाँ रोड बनती है, फिर कुछ दिनों के बाद रोड टूट जाती है. अगर नहीं टूटती है तो ये खुद उसको तोड़ने लग जाते हैं साइड से. धोती खोल रहा है. क्या कहीं ना कहीं से कुछ पाइप निकल जाता है, कहीं से वाटर लीकेज होने लगता है. इट्स रियली फ्रस्ट्रेटिंग. ये दुखा है लेकिन टूटा तो ये नहीं पैच है. देखो, ये पैच पता नहीं ये कब बनेगा. और उम्मीद का दामन छूटा तो I mean, this is what we are paying the tax for, really. And guys, this is not frustrating to me. This is frustrating to each and every guy who is paying the tax. जो दिन रात काम कर रहे हैं, बना के गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे हैं, और उसके बाद ये रोड कंडीशन देखने को मिलती है. I don't know when these things will improve in India. I have no answer for that, but a sleeping partner cannot answer sitting here. ठीक नहीं हो रहा. Anyway, leave it. This is the morning, right? So we have to be in the good mood. Let's talk something else. Since we are talking about taxes in India, अभी न्यू बिल पास हुआ है, न्यू इनकम टैक्स बिल, और न्यू टैक्स स्लैब भी चेंज हो गया है.
And congratulations to each and everyone. Finally, some good news for middle class people. Now we don't need to pay any tax up to 12 lakh of income. So congratulations to everyone. Now how things work? Basically पहले ये 7,25,000 का जो एनुअल इनकम जिनकी होगी उनको ज़ीरो टैक्स था. अभी इसको बढ़ा के कर दिया है 12 लाख. तो अगर आपकी इनकम एनुअल इनकम जो टैक्सेबल इनकम होती है आफ्टर ऑल द डिडक्शंस ऑफ PF एंड अदर थिंग, तो जो एक फाइनल टैक्सेबल इनकम बनती है अगर वो आपकी 12 लाख या उसके नीचे है तो यू हैव टू पे ज़ीरो टैक्स. This is really a good news. And again, see guys, this is for those people who are paying 30% tax. See, this is 30% tax. क्या रोड थी यार, कैसी रोड बनाए हैं. Again, this is for those people who are paying 25% tax. This is 25%. Again, 20% tax. ये थोड़ा छोटा है तो इसको कर देते हैं 10% टैक्स. ये पैच थोड़ा और छोटा है, हम इस यहीं से जाएंगे 5% टैक्स. अब ये देखो इसको क्या बोलोगे. दिस इज स्पेशल टैक्स विच इज LTCG STCG. दिस इज LTCG. दिस इज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स. ओह माय गॉड. ऑफ रोड इन द सिटी. भाई डेली कम्यूट के लिए लोग यहाँ से कितनी बार आना जाना करते हैं, लेकिन फिर भी ये मजाल है बन जाए. ये देखो छोटा सा गड्ढा. ये छोटा सा गड्ढा कौन सा टैक्स है पता? आई टेल यू. अब हम बात कर रहे थे कि टैक्स की, राइट? तो अगर आपकी इनकम 12 lakhs के अंडर है तो यू डोंट नीड टू पे एनी टैक्स. एंड देयर इज़ अ स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ 75,000. तो अगर आपकी एनुअल इनकम टोटल 12,75,000 भी हो जाती है तो भी यू हैव टू पे ज़ीरो टैक्स, क्योंकि वो स्टैंडर्ड डिडक्शन हो जाएगा एंड देन इट विल कम टू 12 लाख या उसके नीचे. अगेन लंबा सा जाम ट्रैफिक जो कि हमेशा यहाँ मिलता है. नथिंग न्यू है हम पर. नथिंग सरप्राइजिंग. तो वो जो छोटा सा गड्ढा आया जिनको हमने कहा कि ये भी एक टैक्स का पार्ट है, तो देर इज़ समथिंग कॉल्ड एज वेव ऑफ इफ योर इनकम इज़ 10,000 मोर देन this particular rebate of 12 lakh. Let's consider including this 75,000 of deduction. Someone's annual income is 12 lakh 75,000. He has to pay zero tax. But if someone's income is 12 lakh and 85,000 annual income, which is extra of 12 lakh 75,000, so he or she has to pay 10,000 annually as income tax. Yeah, so this is a special kind of tax where if your income is just crossing the rebate amount, so you have to pay the whatever the extra is there. So this is again a good news because पहले क्या होता था ना कि अगर आपकी इनकम 2,50,000 का रिबेट मिलती थी, जब उस टाइम की बात कर रहा हूँ, उस टाइम पे अगर आपकी इनकम उस 2,50,000 से 1 रुपये भी ज़्यादा होती है तो आपको उस स्लैब के अकॉर्डिंग देना पड़ता था टैक्स. अब क्योंकि जो रिबेट अमाउंट है वो भी बढ़ गया है बहुत, और अगर 1 रुपये भी ज़्यादा होता है तो पीपल हैज़ टू पे 80,000 12 लाख इनकम वालों को. तो ये भी एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव था विच इज़ गुड. तो देखो भाई, हम सिर्फ गवर्नमेंट की बुराई नहीं कर रहे हैं, हम गवर्नमेंट की भलाई, हम गवर्नमेंट के बारे में अच्छा भी बोल रहे हैं. तो ऐसा बोलने मत लग जाना कि भाई गवर्नमेंट को गाली दे रहा है ये वो. उड़ता ही ओह माय गॉड. जाम हो तो ऐसा हो वरना ना हो. दिस इज़ बेंगलोर का जाम, क्योंकि ये पीक ऑफिस आवर है इसलिए ऐसा जाम देखने को मिल रहा है. अब मुझे तो 2 दिन ऑफिस जाना होता है बिकॉज मेरा ऑफिस हाइब्रिड मोड में काम करता है. तो आई हैव टू गो ओनली फॉर 2 days. तो ठीक है 2 दिन सह लेंगे. लेकिन सोचो यार, जिनको डेली जाना होता है, और यहाँ बहुत से लोग ऐसे हैं जो डेली ऑलमोस्ट दे ट्रैवल फॉर 20 किलोमीटर्स, तो उनके लिए कितना टफ होता होगा. उनसे तो ना हो पाएगा इतना. दैट्स व्हाट आई प्रेफर एक्चुअली. ये ऊपर देखो सिर्फ ट्रक नज़र आ रही है. APML सबका भरोसा. ऐसा लग रहा है कि सिर्फ ट्रक है, लेकिन वहाँ भी ख़तरनाक जाम है. ऊपर भी ऊपर वाला सैलाब और ये जो सैलाब हमारे सामने जा रहा है, ये दोनों सैलाब जाके आगे मिल जाएंगे जैसे 2 नदियाँ मिल जाती हैं. ये क्या बीच में ऐसा पहाड़ सा बना दिया है. This brief construction montage.
सैलाब को इस दिशा में मोड़ देते हैं, सैलाब के साथ ही चलते हैं, जहाँ जहाँ सैलाब जाएगा वहाँ वहाँ हम जाएंगे। ओह गॉड। एंड यू नो कई जगह ट्रैफिक सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि ये जो बीच में डिवाइडर बना हुआ है वहाँ से जब गाड़ियाँ आती है, अगर वो यू टर्न लेते हैं तो फिर पीछे जितना भी ये जो सैलाब आता है वो रुक जाता है। तो जैसे ही डिवाइडर से कार घुसती है या कोई बस यू टर्न लेती है वो पूरा सैलाब रुक जाता है। और ये सैलाब इतना लंबा सैलाब है ना, पूरा पीछे तक आधा जाम उसी से हो जाता है। अभी देखो ये आगे सैलाब रुका हुआ है, क्यों रुका हुआ है आई शो यू, क्योंकि लोग वहाँ से यू टर्न ले रहे हैं जहाँ से मुझे भी लेना है। ऐसी जगह में आओ ना जहाँ पे ऐसे ट्रैफिक हो और रोज़ हो और हर टाइम हो, ऐसा लगता है दुनिया में कितने सारे लोग हैं, इतने सारे लोग हैं, उनमें हम भी एक हैं, वो भी वही कर रहे हैं, हम भी वही कर रहे हैं। हम चले जाएंगे, हमारे बच्चे आएंगे, वो भी यही करेंगे, और उनके आसपास बाकी लोग भी वही करेंगे। चलते रहता है ये प्रोसेस। एम आई टॉकिंग डीप शिट। जब आप ऐसे रास्तों से रोज़ गुजरो और आपको समझ में आए कि देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन यू एंड रेस्ट ऑफ ऑल, सब अपने अपने लाइफ में जूझ रहे हैं पापी पेट के लिए। देखो कैसे सैलाब मुड़ रहा है, बस इसी वजह से पीछे जाम है। हम भी सैलाब के साथ चलते हैं। ओके नाउ हियर आई हैव टू टेक लेफ्ट, तो मुझे लेन चेंज करनी होगी एज सून एज पॉसिबल, क्योंकि अगर ऐसे सैलाब में आपने लेन पहले से चेंज करके नहीं रखी है तो बहुत ट्रबल हो जाएगा भाई। क्योंकि अगर आप वहाँ से आप डायरेक्ट लेफ़्ट टर्न लेने की ट्राई करोगे तो पीछे जितने भी लोग हैं ना उन सब की गालियाँ पड़ेंगी आपको, जो सुबह सुबह मुझे नहीं खाना है। जाओ भाई जाओ। सैलाब तो उधर सीधा चले गया, सीधा सीधा। अब हम छोटे से नहर में घुस गए हैं। खाली सड़क, बीच बीच में फन करने का भी मौका मिलता है। ऐसा नहीं है कि हर जगह ट्रैफिक है, लेकिन हर जगह ट्रैफिक तो है यार। अभी देखो ये भाई साहब यू टर्न ले रहे हैं। चलो वो तो प्रो था तो जल्दी से निकल गया। दैट्स इमेजिन जो लोग नया नया सीखें यार, जो नया नया नहीं भी सीखे हैं और उनको उतने प्रो लेवल में कार यू टर्न लेने नहीं आता, उनके लिए कितना प्रॉब्लम है। व्हाट ही विल डू, सी वहाँ जाके वो रुक गया। चलो उस लेन में तो कोई ट्रैफिक नहीं था तो उसको कोई गाली नहीं पड़ेगी। Let's go. Okay, I will also take left from here. Oh, यहाँ से तो खाली है। क्या मेरी बाइक यहाँ से घुसेगी? ये भाई लेट मी सी अगर मेरी बाइक भी जा पाए तो। Let's try. Okay, yeah. ब्रावो। जंग जीतनी पड़ती है हर सुबह, हाँ हर सुबह नई जंग, और हर जंग को जीतना है। अगर आप ये जंग नहीं जीत पाओगे तो आप अपने ऑफिस नहीं पहुंच पाओगे। सी दिस इज़ व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट। लोग क्यों करते हैं ऐसा बीच रोड में? और टाटा ने बर्न आउट कर रहा है भाई स्कूटी में। इंडियन रोड्स में एंटरटेनमेंट की बिल्कुल भी कमी नहीं है। आप निकल जाओ, आपका मनोरंजन हो जाएगा ऐसे ही। एंड फाइनली आई एम लेट, इट्स ऑलरेडी 15 मिनट लेट। एंड पीछे मैंने रॉयल इनफील्ड की जो नई बाइक आई है, ये लोग यहाँ अपोजिट डायरेक्शन से क्यों आ रहे हैं? सीरियसली अभी ट्रैफिक कम है जो आप लोग ऐसे आ रहे हो यार। के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है। इसलिए आज के लिए इतना।